welcome to The Wire. I'm Idisha Vermani, and with me is Sadaf Hussain. He's a chef, he's a podcaster, and he's an author of 4 wonderful books. And the latest we have with us here today, Masala Mandi. So, Sadaf, great to have you today. Thank you. Lovely to be here. I see a lot of sticky notes. काफी points बन चुके Depths में पढ़ा है मैंने book आपका. हैं। हाँ, डेप्थ में कहना पड़ेगा. It's a fat book. हाँ, it's a fat book. Yeah, we'll get to that. Yeah. So your first book was Dastan-e Dastarkhan, Yes. which was about food from Muslim kitchens, Correct. which goes beyond your biryanis and kebabs, है ना? And Masala Mandi feels like a natural extension of that book, but with more popular recipes included in it. Would you agree with that I description? agree. Yes. I think the reason of also writing both the books are very different. The first book was to break this stereotype that मुसलमान हो तो मुंह में कबाब डाल के उठते होगे और बिरयानी खा सोते होगे. So that's why the first book, if you flip around, you would see that बिरयानी की रेसिपी ही नहीं है उसके अंदर. Like I would not talk about बिरयानी at all. पूरे बुक में अगर वो करीब 250-300 पेज किताब है वो, उसमें बिरयानी का जिक्र बस 17 टाइम्स हुआ है. वो भी ऐसे पासिंग दिमाग. I noticed, yeah. हाँ, because I was like, you know what, I don't want to talk about biryani because everybody knows about biryani. I don't want to talk about the regular kebabs as well, like a Sikh kebab or boti kebab. So there are different kebabs like Bihari kebab, which I love. तो वो उसमें जिक्र किया गया है. So that was the idea that Muslims eat veg and meat together. मतलब ऐसा नहीं है कि अरे सिर्फ मीट ही खा रहे हैं, सिर्फ गोश्त खा रहे हैं, हाँ. भिंडी भी खाते हैं, आलू भी खाते हैं, सरप्राइजिंगली. तो अगर आपको नहीं पता था तो हम बता रहे हैं. आई नो, ब्रेकिंग न्यूज. हम आलू भी खाते हैं. तो वो था. बट देन ऑफ कोर्स नेचुरल एक्सटेंशन उसका हुआ कि आई वांट हियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट अ मुस्लिम ओनली बुक. दिस इज आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ सेलिब्रेशन. मसाला मंडी. मसाला मंडी कि मसाला मंडी में दुनिया जहान के मसाले हैं. बिल्कुल ही मंडी खुल गई है कि भाई वट एवर काइंड ऑफ मसाला दैट यू थिंक ऑफ और यू कैन थिंक ऑफ यू विल हैव इट. कुछ जगहों को छोड़ के आई एक्सेप्ट कि कुछ जगह मिस हो गए. जगह एज इन जियोग्राफिकली थोड़ा. सिटीज, नो ज्योग्राफी कवर्ड. हाँ. नॉर्थ वेस्ट साउथ सब हो चुका है. बट सिटीज कुड हैव बीन देयर. जैसे कि इंदौर में 1-2 मसाले होते हैं दैट आई मिस्ड. जैसे कि कानपुर का बुकनू आई हैव मिस्ड. ये बाद में रीडर्स ने आपको बोला या आपको? No, Buknu to I wanted to add, but Buknu is one. Buknu is a GI tag masala. Okay. It's a chaat masala essentially. But how much that people say the story is that it has 36 kind of spices, 36 masale, but nobody knows. So everybody takes a wild guess. It's like a Galavati kebab story कि हमारे में 156 मसाले आते हैं. But because I've made Galavati kebab so many times, I know that it can be easily made with 5 masalas and 55 masalas. बुकनू आई हैवंट मेड पर्सनली, तो आई डिड नॉट ऐड. इंदौर में एक मसाले हैं विच आई एम फॉरगेटिंग. वो मुझे किसी ने आफ्टर रीडिंग द बुक सेड, एंड उसने बड़ा ऐसे गुस्सा करके बोला कि आपने इंदौर क्यों छोड़ दिया. जानबूझ के छोड़ा. जानबूझ. मैंने कहा नहीं यार, आई लाइक इंदौर, लेकिन जहन में नहीं आया. और देन शी लाइक आई एम हैप्पी. देन जब वो गुस्सा करके मैं नॉर्मल बोला, फिर उसने भी नॉर्मल लगा. ठीक है. मैंने बोला अगली बार प्लीज भेज देना वॉल्यूम 2. But I think, I mean, already उसमें 480 plus spice blends है, but कुछ तो छूटना ही था. India is such a diverse country. Exactly. इतना खाना है हमारे पास. इतना बड़ा रीजन है, कैसे होगा? can't read. Yeah. But how difficult is it to write about food history at a time like this when एक बहुत movement चल रहा है to dissociate with a certain aspect of our history. कुछ भी मुगल origin का हम denounce करना चाहते हैं बस इस समय. So at a time like that, with your first book, which predominantly states के मुस्लिम खाने के बारे में है, this one doesn't do that, but how difficult is it to navigate all of this? बीच में there were 2 anthologies also which came out. Okay. And that typically the 2 anthology, the one of them is called Desi Delicacies. It only had Muslim writers, and it had Muslim writers from India, Pakistan and Bangladesh. And then the second one, all 3 communities we want to hate on actively right now. Everybody, सबसे लड़ाई करनी है, सब आ जाओ. And then the second volume of that was called Forgotten Foods. But it opened up a lot more people, and only India-centric. But again, focused on largely Muslim community. I think the idea of all, and I think for first one, a lot of people came to me and said, you know, and especially because the first one came out in 2019. तो उसमें था that, and on the cover itself, I wrote recipes from the Muslim kitchen. But when you flip inside, introduction में I said, food don't have a religion. तो people are like, ये क्या hypocrisy है. I'm like, थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी ना. हम सब में होनी चाहिए.
तो I said कि idea is that it's difficult to write about history, yes, not just that you're narrating it. वो तो that's secondary. The first is to find the source itself. And abhi, when you have so many different sources and people, who is your credible source? And that's the biggest problem. I remember the first one when I was writing, and there was some recipe, and uske andar it asked for tomato. I wrote that. Then I reached out to a chef and I asked कि ये recipe, what do you think about it? He said गलत है. I'm like, अरे थोड़ी इज्जत के साथ गलत है बोलते यार. Why? Then he said that टमाटर तो उसमें पड़ता ही नहीं है. There is yogurt. It makes sense. Something is, एक तो वो fact check हुआ. But when you talk about narration of it, एक story है, उसका एक तरीका है, तो दो चीज़ें हैं. Of course, there is oral history and there is the real other kind of history. That is not a real, but other kind of history and oral history. It's difficult just to find out कि किस तरीके से you're going to write, which is giving enough information and you're not holding back. I think history को अगर आप with context पढ़ोगे, then you understand it. Out of context, anything you read it and it's like, oh, it's wrong. And I'm not saying if that is wrong or right, but just to understand it. एक line पढ़ के you can't just reject things. So one of the reasons I think food history in that sense, I find unlike other history apart from food history, has a linear path. That this happened and then happened and then that happened. Right, wrong, then you can plug in. Food, I feel like, do not really have a linear history. There's so many tangents. Like I was giving that. अभी एक ट्विटर थ्रेड फेमस हो रहा था, उसमें somebody was asserting कि खिचड़ी इंडियन है, बिरयानी इंडियन नहीं है. Correct. तो what do you, ऐसी चीज़ों पे what do you say? Would you call chai Indian? I will come to this question कि आधे से ज़्यादा हमारे कॉमन इंग्रेडिएंट्स ही बाहर के देशों से आए हैं. आलू हमारा पोर्चुगल से आया, मिर्ची बाहर से आई है. Correct. तो ये कैसे? तो इंटरेस्टिंग ये है कि जब वो आई बाहर से तो श्योर, लेकिन अब वो 100% हिंदुस्तानी, शुद्ध देसी. चाय, समोसा, बिरयानी, एवरीथिंग. और बिरयानी को लेकर मुझे खिचड़ी पे आता हूँ, बट बिरयानी को लेकर ना व्हाट आई रियली फाइंड फनी, क्योंकि वन क्लास कम्युनिटी ट्विटर ट्रोल्स लाइक बिरयानी हमारी नहीं है, बट दे आर द सेम पीपल समवेयर, किसी हिस्टोरियन किसी फूड हिस्ट्री पर उन्होंने पढ़ लिया कहीं पर रैंडमली कि ओ सेकंड ईडी में एक डिश थी विच वाज सिमिलर टू बिरयानी, लेयर्ड लैम्ब मीट, वट एवर काइंड ऑफ मीट विथ राइस, वो लेयर्ड था. तो बोलते कि नहीं नहीं ये तुम वो तो हमारी है मतलब वो मुसलमान नहीं है, वो भी तो हिंदुस्तानी हिंदू ही है. एंड हम लाइक, या तो तुम बोल दो कि हमारी नहीं है या तो बोल दो तुम्हारी है. हाउ डू यू से इट्स नॉट एंड इट इज एट द सेम टाइम. खिचड़ी ऑफ कोर्स शुद्ध देसी यहीं बनी है. बट शाहजहां का कुछ स्टोरी है ना. लव्ड खिचड़ी, अकबर लव्ड खिचड़ी, जहांगीर लव्ड खिचड़ी, औरंगजेब लव्ड खिचड़ी, एवरीबॉडी लव्ड खिचड़ी. बट वही लोकल तो है ना. तो ये कहना ना कि ओ बाहर से आए, श्योर एक दो बंदे आए बाहर से, पूरा खानदान नहीं आया किसी का भी. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मुगल से पहले भी लोग आए थे यहाँ पे, उसके बाद भी आए. बट थिंक ऑफ इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि श्योर वो आए हैं, लेकिन फुल ऑन्ट्राज लेके कभी कोई नहीं आ सकता है, इतना पैसा किसी के पास नहीं रहेगा. सो यू शुड हैव द लोकल पीपल. द लोकल पीपल विल, फ्रॉम बिल्डिंग बिल्डिंग्स टू मेकिंग योर फूड, यू कैन, इट्स लाइक व्हेन यू हैव अ हाउस हेल्प, राइट, देन यू अपने हाउस हेल्प को तुम अपने हिसाब से कैन यू ऐड दिस, कैन यू डू दैट. तो दैट्स व्हाट वाज प्रिविलेंट कि इसको ऐसे कर दो, उसको वैसे कर दो. व्हेन यू हैव इनफ मनी, राइट, देन यू वांट लाइक ओ एवोकाडो भी खाना है तो देन यू आस्क योर हाउस हेल्प कि आज एवोकाडो का शेक बनेगा या फिर एवोकाडो टोस्ट बनेगा. बट इफ यू डोंट हैव इनफ, देन यू विल नॉट हैव एवोकाडो. सो it's the money factor. Hence the food kept on changing. Whatever they liked, they would add. Like what I think Aurangzeb loved laziza, which was khichdi, but his khichdi had like dry fruits, right? Shah Jahan also loved khichdi, but his would have meat in it. So everybody loved khichdi, and also because India produces rice. So it's not easy to say कि ये बाहर का है और ये बाहर का नहीं है. There's no inspiration. Sure, might have come. Like you eat avocado. Inspiration might have come from outside. लेकिन क्या वो इंस्पिरेशन के बेसिस पे कैन यू से कि दिस इज नॉट हिंदुस्तानी, दिस इज हिंदुस्तानी? नो, इफ यू मेड इट, इट्स योर्स. एज ऑल्सो द इस साल तो नहीं आया था, लास्ट ईयर तक तो आई हैव सीन लॉट डोसा आइसक्रीम एंड ऑल दैट जैज, राइट. एंड आई ऑलवेज टेल पीपल कि इफ द गुड डोसा मतलब जिसको हम डिफाइन करते हैं गुड डोसा विद आलू एटसेट्रा और विदाउट एज वेल, विद जस्ट पोड़ी, इफ यू एक्सेप्ट दैट एज हिंदुस्तानी, देन दैट
डोसा आइसक्रीम इज ऑल्सो It's योर्स. also yours. You can reject it. हाँ, Evolution होगा, वो बाहर चला जाएगा. But होपफुली. hopefully, but वो भी तुम्हारा ही है. Take pride in that as well. So the good quote unquote is yours. The bad is also yours. So everything is insani. And that's why I said कि अगर समोसा बाहर से आया है, अगर आलू बाहर से आया है, फिलो पेस्ट्री का तरीका अगर बाहर से आया है, बट जिस तरीके से हम बना रहे हैं वो तो हम बना रहे हैं. कुनाफा आजकल बहुत चल रहा है. कुनाफा फिलो पेस्ट्री से बनता है. इट्स नॉट द सेवई, बट हमने सेवई बना दिया. मतलब यार उतना कौन पैसा खर्चा करेगा. सेवई दिस it will have a similar kind of texture, right? Kunafa is also made for poor people, but now anybody and everybody can have it. So I feel inspiration दुनिया से लेना चाहिए, but whatever you're making is pretty Hindustani. So in the book you talk about the origin story of biryani. I want you to tell the readers what you've talked about in the book and how pulao was considered the superior rice dish, but Even today, बाद में अभी भी even today, if you go to Lucknow, they would say जो है पुलाव है. बिरयानी जो है तमीज़दार इंसानों के घर पे नहीं सर्व करते हैं. अगर आप तमीज़ से खाने का शौक और खिलाने का शौक है, बिरयानी को डिश है. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई ग्रो अप इन बिहार एंड झारखंड, वहाँ पर बिरयानी कंसेप्ट नहीं है. ठीक है, इमेजिन शादी हो रही है या घर पे कोई गेस्ट आया है. when you have guests at home, you will have like entourage, lots of food, ये भी वो भी वो भी. बिरयानी is just one. Making will have different process कि चावल लगाया, गोश्त लगाया, then उसको पैक कर दिया and then serve it with raita or whatever. But if you make pulao and गोश्त, there's separate rice, there's separate meat, तो दो अलग ऐसे ही हो गया. तो बिहार, झारखंड always have pulao गोश्त. But now of course you have a Bihar version of biryani as well. Everybody has their own version of biryani now. So biryani, of course, there are 2-3 stories of biryani which goes around. One I said, the Onsoru, which was in second AD, a Tamil literature which we have found कि अच्छा इसके अंदर एक similar dish बनती है. अच्छा अब बिरयानी जो है, if you think of it, lamb या meat and rice, कोई rocket science नहीं है. Just anybody can make it. So that's that. Then of course the word Zeer Biryan or other, and I'll come to the popularity when it actually became popular. लेकिन all those dishes would have some sort of meat flavor. एक जो पॉपुलर कहानी है वो ये है कि शाहजहां के वक्त पे इसका इन्वेंशन हुआ. शाहजहां की वाइफ जो मैडम जी चल रही थी, बैरक में घूम रही थी. क्यों घूम रही थी नहीं पता है, बस घूम रही थी. एक मूड कर गया कि चलो घूम के आते हैं. तो एंड देन शी सॉ ऑल दीज वॉरियर्स लाइक रियली लीन. लीन मतलब नॉट लाइक अ ऋतिक रोशन लीन. कमजोर लग रहे थे. कमजोर थे, जिनको कि बोलचाल की भाषा में मदगिल्ले बोलते हैं. मदगिल्ले हो गए वो, तो बिल्कुल ही मदगिल्ले से थे. तो शी सेड किया कुछ तो खाना खिलाओ कि अगर लड़ाई कैसे करेंगे. हाँ तलवार मतलब चम्मच उठ नहीं रहा, तलवार क्या उठाएंगे. तो देन द शेफ वाज लाइक ओके ठीक है. नाउ पुलाव दे ऑलरेडी हैड. ऑल्सो व्हेन यू गोइंग ऑन वॉर, तो ऐसा पिकनिक नहीं चल रहा ना. यू कैरी योर फूड. ऑल्सो विथ वॉर यू डोंट कैरी एवरीथिंग. लोकल चीज़ें भी आप लेते हो. तो अभी अगर आप कहीं एक जगह से दूसरी जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर करेंटली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन टू अनदर, स्पेशली बैकपैक कर रहे हो या फिर कैंपिंग करना है, तो वहाँ पे यू टेक फ्यू थिंग्स बट देन यू विल फाइंड सम स्टफ अराउंड इट टू कुक समथिंग. तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू बिरयानी और मेनी डिशेस. तो इनका भी वही प्रोसेस था कि एक ऐसी चीज़ जो एक वन पॉट बन के निकल जाए एंड यू सर्व इट टू पीपल. सो दैट्स द एंटायर आइडिया. तो ये एक स्टोरी थी जिसमें कि है कि अच्छा ठीक है, दिस टाइम शाहजहां के नेम की वाइफ से शुरू हुआ एंड एवरीबडी स्टार्टेड मेकिंग. लेकिन प्रॉब्लम आई है कि जो बिरयानी का शब्द है, द वर्ड बिरयानी डिड नॉट कम राइट नाउ. Of course, inspiration comes from here. Then inspiration comes from pulao. The inspiration comes from a Persian way of putting fried onion or caramelized onion, right? Persians also have biryani, by the way. Samarkand वगैरह में biryani है, but that biryani is very different than ours. You would not recognize क्योंकि वो meat है, meat and paratha. हाँ, I know you mentioned soda bottle opener वाला में you had that. I was very confused कि बिरयानी के बीच में पराठे की बात कैसे हो रही है. Correct, होता है. I was also confused when I had like ये तो बिरयानी नहीं है. हाँ, but वो उसको बिरयानी कहते हैं. हाँ, because biryani means एक तो रोस्टिंग और दूसरा इज अनियन, राइट. तो बेसिकली इससे बिल्कुल ही मिन्स टाइप, मतलब श्रेडेड, नॉट इवन मिन्स, श्रेडेड. दैट्स द ओरिजिनल वन. सलमा हुसैन, सलमा आपा एक और हैं, who has written enough books on Mughal food. She also shares her story about that when she was traveling to Samarkand, when she got surprised like ये तो बिरयानी नहीं है. It's like when you go to Puran Delhi and you're like पराठे वाली के लिए ये तो पराठा नहीं है. So that's what happened. So that's the inspiration of adding meat, rice together and serving it.
तो ये सेकंड स्टोरी. ऑफ कोर्स थर्ड स्टोरी इज आल्सो, थर्ड स्टोरी में उतना मटेरियल नहीं है लोगों के पास टू प्रूव इट, व्हिच इज जस्ट लाइक सम शेफ बेसिकली वांटेड टू पुट थिंग्स टुगेदर एंड सर्व इट टू पुअर पीपल. तो वो एक है, बट उसके में श्योर एवरीथिंग पुट टुगेदर, बट उसमें वो रियलिटी ज़्यादा उसकी डिटेल नहीं मिली है. सो यस, बट उस टाइम पर भी अकबर ऑफ कोर्स डिड नॉट हैव दिस वंडरफुल थिंग, नॉट बिकॉज उनका तबीयत खराब होता था या फिर उनको ऐसे मूडी थे, बट उनके टाइम पर लोगों के पास थोड़ा कम खाली टाइम था. तो मैं तो यार छोड़ो, जो चल रहा है वही चलना. तो पुलाव उनके टाइम बहुत पॉपुलर था. लेकिन उसके बाद शाहजहां ऑनवर्ड दिस चीज, बट नाम जो है अभी बिरयानी नहीं आया है. एक ये भी आर्ग्यूमेंट है ना कि अगर सब्जी डाल दिया तो वो बिरयानी नहीं रही, विच यू टैकल्ड हेड ऑन इन द बुक, कि सब्जी डालना डजंट मीन कि वो बिरयानी नहीं है. इट इज अलवान नईमत, अगेन सलमान खान की किताब है. उसमें शी टॉक्स अबाउट इट. देयर इज अ नूर महली बिरयानी, पनीर के साथ. पनीर साथ में, करेक्ट. तो नूर महल के नाम पे ही रहे, तो अभी अगर उन्होंने पनीर डाला है तो हम कौन है, मतलब वी आर मेयर मोटल्स. अगर फैंसी लोगों ने किया है तो ये है. तो दैट्स तो बिरयान अब तक आया नहीं, बट बिरयान धीरे धीरे आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ मुगल, ऑलमोस्ट लाइक बहादुर शाह जफर तक बिरयानी का नाम आने लगता है. अब तक बिरयानी का नाम बिरयानी तरीके से मिल रहा है. इट्स ज़ेर समथिंग या ज़ेर खुदशान या समथिंग समथिंग चल रहा है. बट ओवर द पीरियड वो धीरे धीरे जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं वो आगे बढ़ जाता है. एंड देन इन द मॉडर्न टाइम्स ऑफ कोर्स पोस्ट ऑनलाइन बाढ़ कि सबको अब खाना है, बिरयानी ही खानी है सबको, तो वो कीवर्ड बन गया लोगों के लिए. एंड पीपल थॉट ओके लेट्स जस्ट डू दिस. तो वो हो गया. इवन सो मच सो कि अभी अगर आप साउथ भी जाओगे ना, साउथ हैज़ बिरयानी एज वेल, एंड आई एम थिंकिंग होल रीजन, राइट. उस होल रीजन में दे यूज शॉर्ट ग्रेन राइस, कीमिया, जीरा का शाला और जीरा का सांबा, 2-3 चावल आते हैं, उससे बनता है. इट्स अ वेरी पुलाव इश वर्जन ऑफ बिरयानी. हल्की सी लंपी होती है, अनलाइक द नॉर्थ वाला, जब जिसको बोलते हैं चावल तो खिले खिले होने चाहिए बासमती. लेकिन बिकॉज अब नॉर्थ वाले ट्रैवल कर रहे हैं साउथ, सो दे लाइक अरे हमें तो वही बिरयानी चाहिए. सो नाउ दे ऑल्सो गेटिंग द सिमिलर काइंड ऑफ बिरयानी. काफ़ी लोग वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि लंबे ग्रेन से करते हैं, विच आई पर्सनली हैव नो प्रॉब्लम, बट आई फाइंड कि चेंज तो हो रहा है ना, लेकिन चेंज हो रहा है, बट आई डोंट लाइक इट. आई वॉन्ट, इफ आई गो टू लाइक कोची, आई वॉन्ट देयर बिरयानी. नो व्हाई वुड आई हैव लाइक अ लॉन्ग रेंज जो दिल्ली में या फिर कहीं और खाई सकता. नॉर्थ में तो मिल ही रहा है. वो चेंज कर भाई बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन. एंड आई फील लाइक यू शुड कीप दैट, but also keep your own local. In fact, I was in Nepal. I go to Nepal every year. It's just a fun place to go to. I went recently. I went last December. अच्छा हाँ, तो I was also in October. ना नेपाल उससे पहले, ये अक्टूबर का था, पर उससे पहले मैं एक साल पहले भी गया था. There was no biryani in Nepal. Yeah, But one suddenly- wouldn't expect biryani in Nepal. You would not, and you should not maybe. But this time when I went, I was looking at biryani shops everywhere, No way. and I was surprised. I'm like, why? But they have their own great food. Exactly. They don't need to adopt They don't need biryani. to do anything. हाँ. But because लोग travel करते हैं now, they want biryani. Also because India Nepal friendship, तो like let's do biryani. Friendship तो नहीं है, थोड़ा बिग ब्रदर बिहेवियर है, बट ठीक है. एक बार भी है तो वही friendship, वही तो friendship. कि ठीक है. ठीक It was so terrible. It was so damn terrible. It was mostly like a fried rice. Like a lot of times when you go to the interiors of Punjab ना, एक तवा पुलाव के नाम पे बिकता है, जिसको लोग बिरयानी बोल देते हैं अक्सर. वही किसी को भी बिरयानी बोल देता है यार. अब कीवर्ड पे काम करना है. बिरयानी बिक रही है, एसईओ उठाओ बेच दो. तो नेपाल में when I was having, and I had the discussion and I was eating this in Tamil, and I asked the guy कि कैसे बनाते हो? Because I'm just curious. So he said कि, and I didn't tell him that I know how to make biryani. I just asked him. बहुत अच्छा लग रहा है, बताओ कैसे बनाते हो. तो होटल का इंसान था, ही just like हाँ ये तो मेरा रेसिपी नहीं चलाएगा. फिर लेकिन सर चावल लेते हैं, बॉयल होता है, देन फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन डालते हैं, उसमें से मीट डाला, और मीट भी दो हो सकता है, या तो वो फुली कुक्ड कोरमा स्टाइल, अदरवाइज जस्ट लाइक KFC फ्राइड चिकन टाइप फ्राइड चिकन. वो डाला, टॉस किया विद सम ग्रेवी एंड सर्व इट. आई सेड ओह अच्छा, लाइक बहुत अच्छा, ये जो बिरयानी खिलाया आपने बहुत मजा आया. एंड देन आई वाज स्टेइंग एट अ B&B देयर इन नेपाल, और वो लोग थी लद्दाख की. एंड आई वाज टॉकिंग टू, एंड somehow they also turned to be a Muslim family, and I asked them ki how is this different, and she says no, sorry, not Ladakh, Bhutan, sorry, she was from Bhutan, so Muslim from Bhutan, and she said ki we don't have biryani, but abhi because we look at YouTube so much कि थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं उस तरीके से बनाने का, because we used to want to just taste it. So then I asked it how is the Nepali biryani, like बहुत ही बकवास. She also said the same thing. But हाँ, but I think I would call कौन it रहा है ये Nepali. बिरयानी? ये जितने लोग दिल्ली के भाग रहे हैं ना थामे सबके सब वही बिरयानी खा. नॉर्थ इंडियन ट्रैवलर्स ruin everything. आई एग्री. अब जाके कहीं प्लास्टिक फेंक दो, पान थूक दो. सो या हिस्ट्री पे आई हैव मोर क्वेश्चंस अबाउट हिस्ट्री, बट मैं उस पर बाद में आऊंगी.
थोड़ी ओवररेटेड कबाब शॉप्स के नाम बता दो। कबाब शॉप्स, हाँ, जैसे फेमस कबाब की जगह है बट बहुत ओवररेटेड खाना है सब। यार मैं ना ओवररेट, प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जो लोग ऐसा करता है मुझे बड़ा गुस्सा आता है उन पे कि ओवररेट क्यों, बिकॉज सी आई कैन से ओवररेट ये है वो है, बट वो एग्जिस्ट करता है मेरे से पहले तक से और मेरे बाद तक करेगा फॉर अ रीजन, तो आई डोंट फाइंड देम ओवररेटेड। and I will tell you, do one thing, go eat and find for yourself. Like पराठे वाली गली, I don't like it, but एंड इट्स नॉट बिकॉज वो पराठा नहीं है, इट्स बिकॉज इट्स जस्ट बैड। that's You can't. हाँ श्योर होगा, बट द पॉइंट इज कि उसमें खचाखच भीड़ लगी हुई है, लोग चढ़ चढ़ के जाए भाई आज तो खा के निकलना है यहाँ से, तो कुछ तो सही कर रहे होंगे, आई थिंक वो सब वही है फर्स्ट टाइमर्स जो ट्राई करना चाहते हैं क्योंकि नाम फेमस है। लेकिन इतने लोग थोड़ी फर्स्ट टाइम, पॉपुलेशन कितनी है हमारी कंट्री की? ये भी है। एंड देन समथिंग, अगर वो दुकान चल रहा है, मतलब पहले से चल रहा है, अगर चलता रहेगा। तो अंडररेटेड बता दो। अंडररेटेड तो बड़े सारे हैं। अभी मैं लखनऊ में था, और लखनऊ में ओवररेट नहीं है, लेकिन ब्रांड एम्बेसडर बना दिया लोगों ने लखनऊ के फूड को, गलावटी कबाब कि ब्रांड एम्बेसडर। भाई लखनऊ और भी खाना है लखनऊ में। एग्जैक्टली, और भी खाना है, गलावटी कबाब की आगे भी दुनिया है, बट लखनऊ में पसंद है कबाब, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी मेक्स कबाब बेटर देन लखनऊ, एटलीस्ट इन द नॉर्थ। तो पसंद है कबाब, यू शुड ट्राई मजलिस कबाब, ये सब अलग कबाब, वो भी ट्राई करिए, गलावट के पीछे क्यों चिपक गए, बट ऑल्सो गलावट कबाब इन लखनऊ। डोंट, इफ एनीबडी इज सर्विंग गलावट कबाब इन दिल्ली, डोंट ईट इट, इट्स गोइंग टू बी टेरेबल। बहुत जगह पे खाया मैंने, इट्स जस्ट, एंड अभी हमने नोएडा की बात की थी कि वहाँ के ठीक ठाक थे। ठीक ठाक बस, अरे वाह मजा ही आ गया, उसमें फर्क है ना। ठीक ठाक इज बिकॉज ऑप्शन नहीं है ना अभी, आपको शादी करनी है, 10 लोग पसंद आ रहे हैं, 10 लोग ही आपके हिसाब से नहीं है, उसमें से मिलेगा जो, चलो यार ठीक है, इसको बर्दाश्त किया जाता है। तुम्हारे में रेड फ्लैग और टॉक्सिक ट्रेट्स कम है, तुमसे पर है, ठीक है, समझ गया। जीने के आई लिए। थिंक जिसने लखनऊ में खाना खा लिया उनको नहीं पसंद आ सकता दिल्ली का खाना, ये मैं समझ गई हूँ जितनी कॉन्वर्सेशन मैंने की है। बिल्कुल नहीं, आई फील लाइक दैट्स पीपल, मिसनॉमर। हाँ यार शहर खाना है वहाँ। अभी इफ यू लाइक फॉर एग्जाम्पल मस्त चटखारा मसालेदार, तो शायद लखनऊ पसंद नहीं आए, क्योंकि वो ज़्यादा नफासत पे जाते हैं, बहुत सटल है, इसलिए मुझे वहाँ की बिरयानी पुलाव वट एवर दे वांट टू कॉल इट, आई डोंट लाइक इट। मुझे पसंद है बिल्कुल ही चटपटा तीखा मसालेदार हैदराबाद वर्जन, लेकिन ऐसे इंसान तो हिपोक्रेट तो होना चाहिए 100 ग्राम थोड़ा सा, लेकिन मुझे हैदराबाद बिरयानी पसंद है कलकत्ता स्टाइल में, विच इज़ विद आलू, सब मिक्स कर दिया है। सब मिक्स। वो मेरे घर पे ऐसे ही बनता है, मैं घर पे बनाऊंगा तो हैदराबाद में आलू चला जाएगा। अम्मीज़ बिरयानी हमने इसमें से ट्राई की थी, पहली रेसिपी आपकी। अम्मी की बिरयानी में ही आलू डालता है। हाँ, मैंने नहीं डालता। अब मेरी अम्मी जो है ना ऊपर से नीचे आ जाएंगी, कि आलू नहीं डाल रहे हैं। चमाड़ मार जाएंगी, लाइक हाउ डेयर यू। एक्चुअली अम्मी नहीं, अभी पापा आ जाएंगे। वन डे आई मेड बिरयानी, आई फॉरगॉट टू पुट आलू, एंड देन वी वर, माय फादर वाज लाइक आलू नहीं डाला इसके अंदर, एंड आई आल्सो फॉरगॉट अबाउट इट, आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाई आई फॉरगॉट, व्हेन आई फॉरगॉट, फिर आलू नहीं है, लाइक नहीं, फिर कैसे मजा आएगा। इमेजिन whole, and it was not even chicken biryani, it was a proper mutton बिरयानी, मटन इग्नोर हो गया है, आलू में सारा मटन की बेचारी बेइज्जती, मेरे 700 रुपए के मटन की बेइज्जती हो गई 50 रुपए के आलू के सामने। फाइन, कोई बात नहीं। तो अम्मी की बिरयानी, आई थिंक आई ऑलवेज से दिस, एंड इवन इन द बुक आई मेंशन दिस, एवरीबडी हु नोज मी और माय फैमिली वुड नो, मदर्स बिरयानी वाज द बेस्ट वन। यूजुअली मदर्स बिरयानी वाज द बेस्ट वन, तो ऐसा कुछ नहीं कि मेरी अम्मी वर्सेस योर अम्मी, आई वुड स्टिल से हाँ माय अम्मी बिरयानी वाज बेटर, बट इन जनरल मम्मियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। रेस्टोरेंट्स में फॉर एग्जाम्पल आई वुड नेवर सर्व समथिंग लाइक खिचड़ी, नॉट खिचड़ी, सॉरी कड़ी, बिकॉज कड़ी ऑलवेज रिमाइंड्स यू मेरी माँ के हाथ है कड़ी, तो आप अपनी माँ से ना लड़ें, तो इसलिए आई डोंट यूजुअली सर्व कड़ी एज वेल। बट हाँ, तो दैट्स माई अंडररेटेड, सो दैट्स वन आई थिंक लखनऊ के कबाब। कुछ दिल्ली में ना एक कुरैशी कबाब है, मतलब बहुत सारे हैं, नहीं ये वो कुरैशी कबाब नहीं है, खान मार्केट पास में, खान मार्केट मेट्रो के पास में है, वो बड़े छोटी दुकान है, खड़े रहते हैं वो नहीं सब। अंदर नहीं, खान मार्केट के बाहर है, मेट्रो के सामने। उनके कबाब मुझे काकोरी बड़े पसंद आते हैं, और मुझे वो अंडररेटेड इसलिए लगते हैं कि बेचारे देख तो बाहर है खान मार्केट के हैं, उनका एड्रेस में खान मार्केट लिखा होता है, लेकिन वो इज इट दैट स्मॉल शॉप वो वाइट इंटीरियर्स वाला, बिल्कुल ऑपोजिट, द बैंग ऑपोजिट? हाँ अभी उन्होंने वाइट करा दिया, हाँ उन्हें अभी नया, ही वाज टेलिंग मी लाइक अभी थोड़ा एक्सपैंड हो रहा है। 3 दफा मैं जा चुकी हूँ, दोपहर में वो कबाब बनाते नहीं है, एक बार मैं खा नहीं पाई हूँ अभी तक। शाम को जाएं। ये एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है दिल्ली में। कबाब नहीं लगाते। Also, I want to get to this later. मैंने कबाब बनाए थे आपकी रेसिपी से, हाँ। ठीक है? और पहली बार तो मैंने ही गलती कर दी, मैंने मिक्स धो दिया, फैट सारा करेक्ट बह गया। करेक्ट, दूसरी बार भी इट्स सच अ डिफिकल्ट प्रोसेस, कबाब मैरिनेट करना एक आर्ट है और फिर उसे लगाना अलग स्किल है बिल्कुल। करेक्ट करेक्ट। मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट। नहीं, आई विल टेल यू,
व्हेन आई कुक आई एम नॉट अ तंदूर शेफ, ठीक है. कुकिंग में ना अलग अलग, एज इन प्रोफेशनल कुकिंग की बात कर रहा हूँ, उसमें अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग काम करते हैं. तंदूर इज इवन दो इंडियन कुकिंग, लेकिन किचन में उसको इंडियन कुकिंग नहीं मानते. उसका तंदूर शेफ अलग होता है, who would only लगाओ the bread. That makes sense because it's so difficult. Exactly. तो वो you need to perfect it. Also, I always say this: if you want free waxing, tandoor is the solution. हाथ डालते ही बिल्कुल जल जाओगे. You notice any of these tandooriyas, वो बिल्कुल ही fully waxed होते हैं. और जल जल के बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती है उनको. तो yeah, if you want to save money, tandoor is exactly is the way to go. Very sustainable. So I remember one of the restaurants I was working and I said I'm not a tandoor chef. तो but I know कि खाना कैसे खाना है, बनवाना कैसा है. So I was making one of the kebabs again from roughly 18th century के आसपास का वो कबाब था. तो मैंने उसको बनाया and I wanted it to be really nice and soft. तो मैंने उसको अच्छे से मैरिनेशन किया, उसका टेस्ट वेस्ट कर लिया, बहुत मज़ेदार. रॉ मैरिनेशन अच्छा था, मीट हल्का टेस्ट कर लिया, सब अच्छा था. वही मिन्स था. Then what I did, I gave it to the tandoori guy and I said, listen, इसको लगा दीजिए. Now the tandoor guy was a senior fellow. वो पता नहीं गुस्सा हो गया and he called me up and I was the guest in that sense at a restaurant. I was doing a special food for 10 days. This guy got really angry and he says, sir, क्या कर रहे हो आप? मैं क्या हो गया? ऐसे नहीं बोला, वो और गुस्से में बोला था. मैं क्या हुआ? ऐसा ये तो आपने जो बनाया है ऐसे थोड़ी हुआ. लगा नहीं, लगा के दिखाइए. लगा बेइज्जती कर दिया. तो खुद ही करके दिखा मैंने. हाँ, खुद ही कर दे. बोला कि अब एक तो तमीज से बता दो. आई वुड बी लाइक हाँ, आई विल ट्राई. बट आई गॉट मैड. आई एम लाइक तंदूर को कौन बनता है? And also because I in that sense I don't like hierarchy. लेकिन वहाँ पे because you are throwing your weight, I said तंदूर का बंदा कौन है? He said मैं हूँ, तो करो. Don't throw your weight around. ठीक है? If you have a problem, I know because clearly मैं तंदूर का इंसान नहीं हूँ. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये नहीं लग रहा है सीख में, वो गिर जा रहा है, तो give me a solution ना. So then when I was also on that level, same, दोनों ही बॉस बन गए थे. देन ही काम डाउन. तो दैट्स वाई तंदूर के लिए अलग से ट्रिक चाहिए होती है बनाने की. एंड आई फील लाइक कि वो सब लोग नहीं कर पाता है. एंड लगाने का आर्ट वहीं आता है. और अलग अलग किस्म के कबाब लगाने के तरीके भी अलग. एक जो रेगुलर टिक्के निकलते हैं, राइट, एक बोनलेस होते हैं. तो बोनलेस में कहाँ पे सरिया जाएगा ताकि हड्डी पे ना घुसे बेसिकली. देन ऑफ कोर्स दे आर लाइक इफ यू बिन टू करीम्स, उनके पास मटन बर्रा होता है. अभी द आइडिया इज हाउ डू यू, इट्स अ बोनी थिंग ऑल्सो गोज टू कार्टिलेज. वो इस तरीके से जाना चाहिए ताकि वो गिर ना जाए. सो ऑल दैट. देन देयर इज ऑफ कोर्स द पसंद या बिहारी कबाब. उसको लाइक यू पुट साड़ी का सिलवेट प्लीट्स, यस. उसको जब फोल्ड करते हैं तो बिहारी कबाब को ऐसे ही फोल्ड करते हैं ताकि वो नीचे न गिरे. इट्स द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. मिल जाएंगे, यस. शाहीन बाग में आजकल सब चीज़ मिलता है. हाँ, भाग गए हैं. And I wrote a story recently and I said this, that Shaheen Bagh became popular during CA protest. But protest का एक जो overarching theme था, that we are not outsiders, right? We are you. We are equal. So they sat to fight, right? In a way also they were like serving biryani, I think, was a classic thing that, you know, if you think biryani is Muslim, then have biryani as well, break bread with us. So all that, like trying to just find our space, saying hum hain Hindustani. That goes. So that's a protest of, again, own existence and making people understand who we are. Then now the food. Assertion in a way. हाँ, I still find it's a very nice and more diplomatic way of assertion. That अब तो तुमको मतलब उस टाइम पर when almost every media house will be like, अरे ये तो छोटा पाकिस्तान बन गया है, या every Muslim area like छोटा पाकिस्तान for some reason. Every 4 लोग वहाँ पे हो छोटा पाकिस्तान, 4 नॉर्थ ईस्ट लोग हैं छोटा नॉर्थ ईस्ट, 4 बंगाली लोग बांग्लादेश नहीं, और या फिर छोटा वेस्ट बंगाल whatever. तो now the entire lane are having like food from different parts of the world. So there's Turkish food, there is Afghani food. There is one guy who makes chapli kebab, which is a Lahori version, Lahore and Peshawar version of chapli kebab. Then there's another version of chapli kebab who's an Afghani chapli kebab. There's Bihar. There's so many different kinds of people who have come to put the food. Now I'm like, it's also the same thing कि वो protest जो है एक बार ही वहाँ खत्म हुआ, but this is a different kind of protest.
जो बहुत ही सिंपली तरीके से चला है, nobody understands it, which is wonderful. Everybody comes, eats the food, enjoys, make the video of it. So good. And hence, in that sense, food helped in just being a lot more assertive. So yeah, so खैर Shaheen Bagh में you'll get that bihari kebab. But हाँ, back to the kebab, it is an art. To more than art of pidoing, पिरोना उसमें, the art is actually to सेकना. कि किसी फैट लॉस नहीं होना चाहिए बनाने फैट लॉस में वो ड्राई नहीं होना चाहिए. अगर तंदूर में डाल तो कब निकालना है उसको, सिगड़ी पे है तो कितना हवा करना है उसके ऊपर. तो इन दैट सेंस हर छोटी मोटी डिटेल जो है ना, वो कबाब पे बहुत मैटर करती है. बिकॉज अगर अंडर डन रह गया एंड घर पे खाना तो ठीक है, बट वॉट इफ यू आर सर्विंग इट टू पीपल, बिकॉज इफ यू आर अ नाइस पर्सन तो वो काट के देख लोगे कि पकाए कि नहीं पकाए. बट अगर सीधा दे दिया तो वापस आ जाएगा, ये तो कच्चा है. बिकॉज वी डोंट ईट दैट मीडियम रेयर मीट ना, वन फुल्ली कुक चाहिए, वो बिल्कुल ही ऑफ द बोन चाहिए. मीडियम रेयर कच्चा ही होता है ना. और कंफ्यूजन दूर हो गया मेरा आज. मीडियम रेयर, हाँ, मतलब फुल डन इज लाइक वेल डन, इज लाइक वेल डन. वेल डन कहोगे इसको फेंक दो आप, फिर क्यों ही खा रहे हो इसे. दैट्स द वेस्टर्न स्टैंडर्ड. हाँ, हम तो वेल डन ही खाते हैं. there was this one joke as well that one time. That they reserve their worst cuts for the people who ask for well done. True, but usually the people who want steak, they would never go for well done. No, the joke was a guy comes to a restaurant, not in India, outside, of course, and gets the steak. Asks the chef, calls the chef. Chef comes in. Chef को बोलता है, chef, this is well done. And then chef was like, yes sir, thank you. They're like, no, this is well done. Like, yeah, thank you. I cooked it. मैंने खुद अपने हाथ से बनाया. Like, अबे गधे, well done. I don't want well done. तो so our definition of well done is very different than theirs. हाँ, तो well done चाहिए होता लोगों को. Last question about food history. आपने चाय की कहानी बताई है किताब में कि the British version was one thing and then Indians just went rogue with it कि हम तो कुछ भी कर लो, ऐसे तो नहीं बनाएंगे जैसे तुम सिखा रहे हो. वो स्टोरी आप एक बार हमारे व्यूअर्स के लिए if you recount. पहला एक चाय से आते हैं कि चाय चाइना से आई है, राइट. उस पे आते हैं तो कहीं कहीं जगहों पे टी बोलते हैं, कहीं कहीं पे चा बोलते हैं. ओल्ड सेइंग इज इफ इट कम्स फ्रॉम सी इट इज टी, इफ इट कम्स फ्रॉम लैंड इट इज चाय. हैप्पीली पीपल आर कॉलिंग इट चा, CHA. पर्शियंस ने रैंडमली उसमें आई लगा दिया. हाँ, जस्ट लाइक लखनऊ पीपल, कुछ और बोल दो तो कुछ और बोल दिया तो चाय हो गया, राइट. चाय, शाय, सेम सेम. Now the story of chai is very interesting because many of the places, चाय की कहानी में एक है कि चाइना में एक एम्परर थे. एम्परर मॉर्निंग में अपने सब मी टाइम ले रहे थे, अपने बागीचे में खड़े थे, मस्त गर्म पानी पी रहे थे, राइट. मे बी नींबू डाल के पी दोगे, शहद, जो भी मॉर्निंग रूटीन ऑफ पीपल वो कर रहे थे अपना. अचानक से बड़े आदमी तो बागीचे में घूम घूम के, मतलब यू एंड आई मे बी सिटिंग इन आवर ओन बालकनी, जो हमारे में पत्ते नहीं गिरेंगे, बट बड़े आदमी थे तो बालकनी में घूम रहे अपने. चाय का एक कोई लीफ था, वो ऐसे उड़ते हुए उनके कप में आके गया, करेक्ट. और फिर उन्होंने पिया उसको और उनको बड़ा मजा आया. बोले यार ये तो अच्छा आइटम है, इसको अपने उनको बावर्ची बोला कि चलो अब यही करना है. कहानी बहुत अच्छी है, नाइस रोमांटिक स्टोरी, बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें कहीं भी रियलिटी नहीं लगती मुझे. और बंडलबाज है. पहला तो ये कहोगे उससे, अब यू आर ब्लडी किंग, एम्परर हो आप. ये कैसे, मतलब कि आपके में चाय की पत्ती गिर गई, आपने आपके जो पूरा चल रहा है लोग, उन्होंने निकाल के नहीं फेंका उसको. पहला तो ये. दूसरा, चाय का बागान देखा कभी आपने? नहीं, फोटो भी देख लेना. हाँ ठीक है. तो यू नो द फ्रेश लीफ, ऊपर से कैसे गिरेगा? ऊपर, हाँ, एक तो झाड़, करेक्ट. प्लस गो एंड बाय फ्रेश, बिल्कुल झाड़ से खींच करके, देन थ्रो इट इन द वाटर, नथिंग हैपेंस, इट्स जस्ट अ लीफ. तो वो इधर फ्रेश पत्ता डालने से कुछ नहीं आएगा, इट हैज़ टू बी ट्रीटेड फर्स्ट. तो ये जो कहानी है ना, क्या एम्परर जो हकीम भी थे, तो दोनों एक साथ में थे. तो अगर एम्परर भी थे, हकीम हो सकता है, सब मून लाइटिंग कर रहे हैं वहाँ पे अपना. बट ये पॉसिबल नहीं है. सो दैट्स फाइन, लाइक इट्स अ नाइस स्टोरी, बट इफ यू पुट लॉजिक देयर यू वुड स्टार्ट क्वेश्चनिंग दैट कैसे कर लिया. तो खैर, तो अब चाय चाइना से आई, ये पॉपुलर है कि हाँ आई है. अब हिंदुस्तान जब आ गई तो चाय जो है अंग्रेज़ों के पास चाइना से नहीं पहुँची, यूरोप से पहुँची. एंड दे ऑल लव चाय सो मच, दे लाइक यार बड़ा अच्छा आइटम है. And then they came to India, of course, and then यहाँ India में they were getting chai from China. There is a very beautiful, like a 2-page story by George Orwell. वो अंग्रेज नाम, 1984 वाले जॉर्ज ऑरवेल हमारे. अंग्रेज नाम लेकिन है बिहार के. तो उनकी है, मतलब it's a satirical thing where he's talking about tea, that how tea tastes the best.
कि एंड ही सेज कि जो चाय का कप आता है वो तो पोर्सलिन का, चाइना से ही आना चाहिए, टी लीव्स कहाँ से आएगी, कैसे पकाना है, विद डैश ऑफ मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो इट्स अ वेरी नाइस सैटिरिकल पोस्ट, यू शुड रीड इट इफ़ यू हैवंट. तो खैर, तो ये हो गया. अब जब बीच में होता है ओपियम वॉर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उस सिलसिले में हिंदुस्तान से उस टाइम पे चाइना इंडिया में हो जाती है कट्टी कि नहीं अब नहीं होगा. तो यहाँ पे फिर ब्रिटिशर्स जो हैं अब उनको तो आदत पड़ गई है. इट्स ऑल्सो वेरी लाइक नोबडी टॉक्स अबाउट ड्रग्स भी करना है बड़ा ये गलत है. नोबडी टॉक्स अबाउट चाय, जो वेरी एडिक्टिव. सुबह चाय जिसको आदत पड़ गई है वो सुबह शाम 3-4 बार चाय चाहिए ही चाहिए. और अगर आप पुराने शहरों में हैं, पुरानी दिल्ली हो जाए, पुराना लखनऊ हो जाए, पुराना भोपाल हो जाए, तो वहाँ पे आपसे कोई चाय पूछता भी नहीं है. वो अज्यूम कर लेते हैं आप चाय तो पियेंगे ही. तो आप कहीं भी जाएं इन पुराने शहरों में चाय मिल जाएगी. यू लाइक मैं तो चाय कोई बात नहीं पी लो, कहीं कहीं बहुत मीठी मिलेगी, कहीं कहीं हल्की, लेकिन वो मिल जाएगी. तो यहाँ पे ये सीन हुआ कि अब लड़ाई हो गई, तो अब चाय आए कैसे लेकिन इंडिया. सो दैट्स व्हेन द ब्रिटिशर्स स्टार्टेड चलाइंग इट. तो चोरी किया, यहाँ आया, और उन्होंने गंदे को भी खींच लिया वहाँ से, चाइना से, थोड़ा ताइवान एरिया से, वहाँ से यहाँ आ गया. और फिर यहाँ पे दे स्टार्टेड डूइंग टी का प्लांटेशन. कि लेकिन उगाना कैसे, बिकॉज नाउ एज ऑफ नाउ दे डोंट नो हाउ टू ग्रो टी इन इंडिया. बट लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर स्टार्ट हैपनिंग. दे फाइनली 4-5 बार ही हुआ, ख़राब हुआ, अच्छा हुआ, ख़राब हुआ, अच्छा हुआ. फाइनली दे वर एबल टू क्रैक द कोड. कोड क्रैक हो गया. हाउ वॉज द बिगेस्ट थिंग इज देन दे रियलाइज दैट एक्चुअली असम में चाय के पत्ते हुआ करते थे. हमारे पास काढ़ा था, और काढ़ा में चाय का पत्ता जाता है एज अ हर्ब. तो उन्होंने क्या किया कि चलो फ्यूज़ करते हैं, तीन दोनों चीज़ों को फ्यूज़ किया. बिकॉज चाइनीज़ जो टी आई थी, टी लीव्स, वो यहाँ पे उग नहीं थी क्योंकि वेदर अलग हो गया. बट उन्होंने जो फ्यूज़ किया देन दे ओ अच्छा. सो दिस रीज़न वाई फर्स्ट टी वॉज मोस्टली नॉर्थ ईस्ट बिकॉज फेवरेबल टेम्परेचर था. तो वो शुरू हो गया उनका. एंड दैट्स वाई आर टी लीव्स अ लिटिल फैटर. और फिर वो हर जगह पॉपुलर है. ऑफ कोर्स देयर, अब अगर इधर हमारे साइड की बात करें साउथ ईस्ट में, तो चाय फ्रॉम इंडिया एंड सलोन यही है ही द मोस्ट पॉपुलर. ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत अब पाकिस्तान भी आ गया है, क्योंकि अब अभी आके आई फील लाइक कि उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट शुरू किया कि भाई चाय तो हम बनाते हैं. बट देयर चाय, मोस्ट ऑफ द चाय दैट आई हैव हर्ड ऑफ डोंट हैव मसाला. आवर्स हैज मसाला चाय. कि तो एंड हेंस आई ऑलवेज, तो ये चाय का खैर हो गया. तो अब आते हैं कि लेकिन ये तो चाय आ गई हमारे पास, लेकिन जो हिंदुस्तानी वर्जन है चाय का, विच इज़ मसाला चाय, वो क्या, दूध, चीनी, उसके अंदर 50 टाइप मसाले जाएंगे. अगर गुजराती हैं तो आप बिल्कुल ही ऑलमोस्ट बिरयानी टाइप चाय बनती है उनकी. और बिल्कुल ही ज़बान पे चिपक जाती है वो मसाले. नॉशियर फीलिंग होता है आपको. तो अलग अलग जगहों पे भी अलग अलग चाय बनने लगी. प्राइम दिल्ली हैज़ अ चाय विच आई फील इज़ द क्लोजेस्ट टू परहैप्स व्हाट ब्रिटिश वाज ड्रिंकिंग. ब्रिटिश ने सिखाया हमें चाय बनाना कैसे. दूध अलग रहेगा, एंड देन ये टी का कंकॉक्शन लिख कर वट एवर टू कॉल इट, वो अलग रहेगा. एंड देन यू डू डैश ऑफ मिल्क. दूध डालना उन्होंने शुरू किया, हमने नहीं शुरू किया है, हमने एक्स्ट्रा कर दिया है. तो देन वी रियलाइज कि यार एक तो बहुत कड़वा है पहली बात, ऑल्सो टी वे एक्सपेंसिव. सो हाउ डू वी डू इट. एंड द रीजन फॉर आस इंडियंस अडैप्टिंग इट, बिकॉज बहुत प्रोडक्शन हो गया सडनली, सो मच कि अब यूके भेजने के बावजूद भी देयर वाज सो मच ऑफ टी लीव्स लेफ्ट. सो दे रियलाइज दैट वी कैन सेल इट टू इंडियंस. तो कैंपेन शुरू में अलग अलग किस्म के कैंपेन हुए. आई रिमेंबर माई फादर एंड ग्रैंड मदर टेलिंग एक्चुअली कि चौक पे इसके फ्री सैम्पल्स मिलते थे. एंड एवरी टाइम व्हेन दे टेल अस मतलब टेल मी कि भाई ऐसे फ्री सैम्पल मिलते थे, मुझे हमेशा वो चश्मे बदूर मूवी, उसका एक सीन याद आता है जहाँ पे एक बहुत ही पॉपुलर सीन है, चमको, मैडम चमको, दीप्ति नवल नेम फारूक शेख वॉज कॉलिंग मैडम चमको, जहाँ पे वो वॉशिंग पाउडर लेके जाए थे सैम्पल देने आने के लिए. तो यहाँ पे वो सैम्पल था. तो मैं नानी वुड गेट फ्री सैम्पल की ट्राई भी करिए, अच्छा लगा तो ये और डब्बा लीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो भी लीजिए. तो हर घर घर जाके ट्रेनिंग दी जाती थी चौक पे बेसिकली, मस्जिदों के पास, मंदिरों के पास भी छोटे छोटे दुकान लगा दी गए. वेरी गुड प्रमोशन, इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन जो चाय अभी बिकती है वो इसीलिए बिकनी शुरू हुई कि लोग थक हार के आएंगे, लोग मतलब गोरे वाइट जो हैं वो आएंगे थक हार के, दे नीड समथिंग. तो देन सो ऑल दैट स्टार्टेड. देन दे आल्सो स्टार्ट टीचिंग, ट्रेनिंग द इंडियंस दैट हाउ बनाना कैसा है. तो टी थोड़ी महंगी थी, मिल्क अबंडेंट था, तो कोई मसले नहीं है. सो देन लाइक ओके काम करते हैं और क्या कर सकते हैं. तो आई ऑलवेज से कि हमने जो है चाय नहीं अडाप्ट की, हमने अपना काढ़ा को अपग्रेड कर दिया. तो जो मसाले में जाते हैं, एक बेसिक मसाला चाय का, उसमें आप अदरक
ये है बेसिकली, आप अगर गर्मी पीते हो आप तो इलायची डाल दोगे उसके अंदर, सौंफ डाल दोगे, 2 मसाले डालते हैं। गर्मी अगर सर्दी पीते हो तो सर्दी के लिए अदरक, ब्लैक पेपर, कुछ जो वार्मिंग मसाले हैं तो वो जाएगा। गुजरात में हो तो आप ऑलमोस्ट गरम मसाला डालोगे उसके अंदर, तो वो कर देते हो आप। लेकिन किया तो वही कि बॉडी कैसे कूलिंग इफेक्ट रखा जाए, बिकॉज आई फील एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ मसाला कम्स इन, दैट मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट हैज़ लॉट ऑफ मसाला, नॉट बिकॉज हमें एक्स्ट्रा फ्लेवर चाहिए, ऑफकोर्स दैट इज देयर, बट बिकॉज हर एक का कुछ ना कुछ तो काम चल रहा है। वो बॉडी के कूलिंग इफेक्ट पे ही काम हो रहा है कि किस तरीके से गर्म जगह पे अगर रहते हो तो आप क्या मसाला खाओगे, ठंडी जगह पे रहते हो तो क्या खाओगे, अगर आपके एरिया में अबंडेंस है किसी पर्टिकुलर स्पाइस का तो आप उसको कंज्यूम करोगे कि नहीं करोगे। चाय के में वैसी सिचुएशन है कि हमने ये खाना है, हमने ये नहीं खाना है, तो उसको अपग्रेड किया गया, महंगा पड़ रहा था तो दूध डाल दिया गया कि चलो दूध डालते हैं, एंड दैट गिव्स अस आवर मसाला चाय। पुरानी दिल्ली आई सेड इज कॉल्ड द सेम थिंग इन हैदराबाद, इज कॉल्ड दम की चाय। पुरानी दिल्ली में इट्स कॉल्ड दूध पत्ती चाय। तो दूध अलग करता है, पत्ती एज इन टी अलग करता है। व्हेन यू आस्क यू गेट दोनों चीज़ मिला के विथ शुगर, एंड अगर आप मलाई के शौकीन हैं तो 1 चम्मच मलाई ऊपर से विथ पापे। आपकी फेवरेट जगह कौन सी है चाय पीने की? पुरानी दिल्ली में कहीं भी? एक तो पहली बार आई एम अ कॉफ़ी पर्सन, ओके। लेकिन चाय पी लेता हूँ, मना नहीं करता हूँ। पुरानी दिल्ली में ना एक है, 2-3 हैं, एक जो मेरा इजी एक्सेसिबल है वो शबराती जो निहारी हैं उनसे थोड़ा पहले है, और उसके पीछे बेकरी भी है, तो आप जब वहाँ बैठते हो तो उनकी खुद की बेकरी नहीं है, ये बेकरी है पुरानी दिल्ली की वन ऑफ द ओल्डेस्ट बेकरी, डायमंड बेकरी, उनकी बेकरी है। तो जब यहाँ बैठते हो ना तो पीछे से बिस्किट जो फ्रेश बन रहे हैं वो भी आपकी खुशबू आती है, और यू ऑटोमेटिकली ले ही आओ यार एक पापे बिस्किट। तो Even if you're a coffee person. हाँ, नहीं टी, सी हियर द थिंग, अच्छा कॉफी इज मोर इंडियन देन टी बाय द वे। कॉफी ना अभी भी, इवन नाउ, इट्स अ कम्युनिटी काइंड ऑफ थिंग। आप कॉफी शॉप में ना लग्जरी बेचते हो, कॉफी शॉप में कभी कॉफी नहीं बेचते हो। चाय में स्ट्रगल दिखाता है, असल स्ट्रगल चाय दिखता है, पता नहीं ऐसा, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी चाय बिकॉज और इतनी सस्ती भी है। कॉफ़ी का दाम तो आजकल और बढ़ गया है, सड़कों पे लोग चाय पीते हैं, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पॉलिटिकल कैंपेन जब होता है, और जो लोग जानना चाहते हैं कौन सी पार्टी जीतने वाली है, मेन कॉन्वर्सेशन वहीं पे हो रहा चाय के टपरी बातें बताओ कौन जीत रहा है। आप यूपी में आइए, वही लखनऊ में तो मतलब दिस इज व्हाट आई हैव नोटिस इन लखनऊ, आई हैव रिसेंटली मूव्ड लखनऊ, 2-3 पॉपुलर चाय दुकानें, वहाँ पे चाय की बात, चाय पियेंगे, ऑर्डर करेंगे चाय, चाय समोसा और बन मक्खन। एक कॉन्वर्स दो, अभी मैं पिछले 2.5-3 महीने की कॉन्वर्स बता दूँ, लोग वहाँ पे ये 3-4 चीज़ ऑर्डर करते हैं, 2 किस्म की बातें चलती हैं, एक्चुअली 3 किस्म की बातें, तीसरा किस्म इज नॉट सो रेलिवेंट बिकॉज वो वर्किंग क्लास कॉर्पोरेट में क्या करना नहीं करना, वो उनकी अपनी चल रही है जो चल रहा है। बट 2 जो बाकी है वो बड़े इंटरेस्टिंग, एक तो पॉलिटिक्स पे कि कौन जीत रहा है, कौन हारा है, क्या हो रहा है, किस सरकार ने क्या किया है, और नॉट जस्ट यूपी पॉलिटिक्स बट सब जगह बात होती है। तो ये पॉलिटिक्स की बात, और यूपी एनीवे, यूपी बिहार एनीवे हाई ऑन पॉलिटिक्स, तो वो है जो फर्स्ट काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन जो मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है। 2-3 हट्टे खाटे मर्द टेबल के पास खड़े रहेंगे, सबको तोंद होगा, सबको, और उसमें से कोई एक इंसान एक साथ पूछेगा, यार चाय और ये जो समोसा है ना कल से नहीं खाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे, हमारा तोंद निकल गया यार, बहुत मोटा हो रहा हूँ। देन द अदर गाय विल लाइक, अरे टेंशन मतलब एक काम करना, सुबह उठना, एंड देन ही विल गिव यू द टिप फुल, उसको भी तोंद है, ही इज आल्सो नॉट लाइक सेम, वो ऐसा कुछ 6 पैक 10 पैक लेकर नहीं घूम रहा, सेम बट एंड ही विल गिव द फुल ज्ञान कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है, और वो बात चलेगी। हाँ बोल तो तुम सही रहे हो, एक काम करते हैं कल से करेंगे, आज तो कुछ नहीं होगा, अब क्योंकि अब तो चाय पी ली, अब चाय पी लिया, शाम में भी चाय पीनी है, कल से करेंगे। इट्स अ कॉन्स्टेंट कॉन्वर्सेशन, एंड इट्स रियली फनी कॉन्वर्सेशन। मैं किसी भी चाय के पास दुकान पे चले जाऊँ, ये तो कॉन्वर्सेशन होती है। तो लखनऊ में आई लाइक दिस न्यू चाय दुकान कॉल्ड न्यू, नॉट न्यू, ओल्ड, कॉल्ड केवल, आई लाइक केवल चाय। पुरानी दिल्ली में दूध पत्ती चाय समथिंग व्हिच आई लव, अदरवाइज मैं भी ठीक ठाक चाय बना लेता हूँ। You talked about food alleys in your book कि उनको म्यूजियम्स की तरह ट्रीट करा जाना चाहिए, थोड़े 1-2 जगह बता दो कोई फूड alleys ऐसी। थोड़ा सा ऐड करूँगा उस पर। आई थिंक फूड इज़ अ लिविंग म्यूजियम। अक्सर जब लोग बात करते हैं कल्चर के बारे में ना कि अरे जितने लोग वॉक कराते हैं, हेरिटेज वॉक कराते हैं, आई फील वंडरफुल, बट पीपल नीड टू नो हाउ फूड इज़ अ लिविंग म्यूजियम। बाकी म्यूजियम तो जिंदा नहीं है, मरे हुए हैं, टच एंड फील करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। फूड में ना यू विल एक्चुअली टेस्ट इट, अरे ओ दिस इज हाउ दे यूज्ड टू ईट, and then of course club with the stories. So I think that's why everybody should focus on food as well as a cultural barrier to understand that, and hence the museum.
if you really want to understand, and I always in the book as well I mentioned that go to bazaars. कोई भी अमीर बाजार, गरीब बाजार, अमीर मतलब ऐसे फैंसी सुपरमार्केट के अंदर वर्सेस एक रेगुलर खादी बावड़ी टाइप का। हर एक शहर के पुराने, यूजुअली पुराने शहर मतलब बड़े नए शहर में एक पुरानी शहर का जो सेक्शन होता है उनकी गली कूचे मिलेगा। आई genuinely want people to go to Old Delhi for मसाले, visit खादी बावली, also Asia's biggest। तो वहाँ पे आपको किस्म किस्म के मसाले मिलेंगे। अगर खाना खाना है वहाँ पे आपको, तो आपको एक किस्म खाना है, लेकिन आई ऑलवेज से कि अगर खाना खाना है पुरानी दिल्ली में कबाब मत खाओ, सबके साथ सेम फ्लेवर आएगा। निज़ामुद्दीन इज़ द प्लेस टू गो टू फॉर कबाब। सो ये दिल्ली का है। बट फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू लखनऊ, go to a place called Rakabganj, which is for spices again. If you go to Jaipur, you go to Bapu Bazaar. If you go to Kashmir, you go near Dal Lake for bread, right? तो और गोवा में of course you have the Mapsa market. तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग बाजार, वो alleys हैं. And I want you to go there, but I also want you to go to the fancy market, because then only you know हाँ difference कि अमीर क्या खा रहे हैं और रेगुलर लोग क्या खा रहे हैं। And I think that's the real way of understanding the food of any city. तो या पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन फूड समझना है irrespective of people, तो गलियां में घूमें। On that note, thanks very much for this discussion.